ये आज लिखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, write down this frequency polygon. Frequency polygon. So histogram is that graph which is made up of rectangles. These rectangles are interconnected to each other. Connect तो हाइट और लेंथ हावा ऐसे फ्रीक्वेंसी एंड विड्थ जो है वो क्लास इंटरवल दिखाता है। सो हिस्टोग्राम ऐसा ग्राफ है, इट इज दैट ग्राफ which is used in the frequency distribution series or continuous series। तो उसी का एक समझो पार्टनर है frequency polygon। It has been extracted from histogram. Basic is histogram. What is this frequency polygon? When we construct a histogram, then we take up the mark up the tops of rectangles from their midpoints, from their center. When we join those midpoints, we get the frequency polygon. So that graph, which is constructed by joining the midpoints of tops of all rectangles in a histogram, that graph which is constructed by joining the midpoints of all tops of the rectangles of a histogram is called frequency polygon। So वो ग्राफ जो हिस्टोग्राम के टॉप्स को मिलाने से बन जाएगा उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। So the frequency polygon can be constructed even without constructing a histogram or with a histogram. If we are willing to construct it without histogram, then we have to draw out or convert the class interval into mid values. Class interval को mid values. So for this, mid values of the classes of a series are to be calculated and they are shown on the x-axis. जो mid values हैं वो निकालने हैं। So frequency polygon can be constructed without a histogram. For this, इसके लिए हमें क्या करना है? For this, we have to calculate the mid values, of all classes, then show these mid values on x-axis पे दिखाइए और y-axis पे वो frequency हम generally दिखाते हैं। So all pointers showing frequencies are joined to make a graph called frequency polygon. अब जब तक हम एग्जाम्पल करेंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा थ्योरेटिकली हम ये क्या बताते हैं, क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, फिर उसके मिड वैल्यूज जो टॉप पे है, टॉप को मिड वैल्यू निकालना है,
फिर वो मिड वैल्यू ज्वाइन करने हैं, तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। अब क्वेश्चन लिख लीजिए, हमें समझ आएगा व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। We have a question, for example, following table shows marks of students. मैं सैंपल सा क्वेश्चन लगाता हूं, मार्क्स ऑफ students. Yes. Construct a frequency polygon. Construct a frequency polygon. Construct a frequency polygon. अब यहां लगाइए आप टेबल बनाओ, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, marks and number of students. For example, marks is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. लिखा? Marks and number of students. इसमें लिख लीजिए आप फ्रीक्वेंसी, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में दैट इज फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 है, फॉर एग्जांपल 15 है, 20 है, 12 है, 50 to 60 है, 40 to 50, 50 to 60 भी लिख लीजिए, 50 to 60 नीचे लिख लीजिए। फिफ्टी टू 60 इसमें है 8। So this is our table or these are our data. क्या हो गया? Shows marks and y-axis shows number of students. X and Y. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Da, wo, tru, sajji, pansa, share. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम करेंगे 5, 10, 15, 20, 20, 20, 5, 10, 15। इसमें हिस्टोग्राम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम किस तरह बनाएंगे, उसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी, ये हिस्टोग्राम में उतनी ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी फर्क है। हिस्टोग्राम तो बनाना ही बनाना है। अब उठाइए 0 to 10 में 5 है, 0 to 10 में 5 है, 5 तक इसको बढ़ाओ, ये एक रेक्टेंगल बन गई। 5 है इसका ये हाइट 5। 10 to 20, 10 है, 10 तक हम ये बढ़ाएंगे। तो 20 to 30, 15 है, 15 है, नजर आता है? 15, 30 to 40, 20 है,
20 है, 40 to 50 12 है, ये 10 है, यहाँ थोड़ा करेंगे ये, अगर मैं साफ साफ बनाना 50 to 68 है। दिस इज सिंपली, इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। अब पॉलीगन किस तरह बनाना है? पॉलीगन बनाना है, ये जो रेक्टेंगल है इसका टॉप है ये वाला, इसमें सेंटर निकालना है, इसको मार्क करना है, ये सेंटर देखना है, इसकी लेंथ पे है सेंटर क्या है, ये क्या है, ये वाला, ये सेंटर, ये सेंटर। अब इस सेंटर्स को इन पॉइंट्स को मिलाना है। ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है हम मिड पॉइंट निकालेंगे, या मिड पॉइंट दिए होते हैं, मिड पॉइंट होते हैं, अगर हमारे पास टेबल है तो मिड पॉइंट हम देखेंगे इसका। अगर दूसरा हम बनाएंगे, ये हो गया, दूसरा हम बनाएंगे, खाली प्रैक्टिस करना है इसमें। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, construct a frequency polygon from the following data, from the following data। अगर हमारे पास डेटा है, फॉर एग्जांपल मार्कस है, मार्कस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फिर हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अगर हमारे पास ये है, मार्कस है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ये है हमारे पास टेबल। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी इसकी है, लेट इट बी 4, 6, 10 और है 15 है, इसी तरह 5 है, फॉर एग्जांपल 12 है, 8 है, ये हमारे पास है। अब किस तरह हम हिस्टोग्राम के बगैर बनाएंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट विदाउट मेकिंग हिस्टोग्राम। तो हमारे पास तरीका है, हम मिड पॉइंट निकालेंगे इनका, मिड पॉइंट 0 plus 5 डिवाइड बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, 0 plus 10 डिवाइड बाय 2 इट इज 5। 10 plus, yes, 10 plus 20 is 30, 10 plus 20 is 30, 30 by 2 it is 15, 20 plus 30 is 50, 50 divided by 2 is 25। 7 बटा 7 डिवाइड बाय 35, 50 नंबर 45, 55, 65। है ना, ये मिड पॉइंट, ठीक है।
तो हम बनाएंगे अच्छा, अब इस डेटा से बनाओ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट मेकिंग हिस्टोग्राम। किस तरह हम बनाएंगे विदाउट मेकिंग हिस्टोग्राम? ये बिल्कुल पॉइंट्स मिलाने हैं, 5 4 इसी तरह बनाना है। मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स ऑफ मार्क्स, मिड पॉइंट्स क्या है 5 15 ये हम कैसे बनाएंगे? हाँ 10 20 है, 10 20 30 40 50 60 70 70 तक है ये, 70 तक। 5 5 हम कर सकते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40। नजर आता है मैं क्या करता हूं? वो समझ आता है? आई एम डिवाइडिंग द एक्स एक्सिस, मैं डिवाइड करता हूं एक्स एक्सिस को। 45 50 55 60 65। अब देखना है 5 and 4, इसी तरह इसको भी हम ये करेंगे। कितने में डिवाइड करो? तो 4 4 में करेंगे। 4 4 8 12 16 20, ठीक है, 4 4 में करेंगे। 5 and 4, 5 है मिड पॉइंट, 4 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 5 है मिड पॉइंट, 4 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 5 यहां हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, यहां 5 के सीध में, इधर 4 के सीध में पॉइंट डालो। 5 and 4 स्केल के हिसाब से 5 के सीध में ऊपर, इसी तरह हॉरिजेंटली 4 के सीध में जो कट हो जाएगा पॉइंट, वो बन गया पॉइंट। इसी तरह 15 and 6, 15 and 6 थोड़ा ह्यूरी पहनस बने ब्याह पॉइंट। 25 and 10, 25 यहां है, 25 and 10 10 25 and 10 35 and 15 35 and 15 35 and 15 45 and 5 45 and 5 45 and 5 4 से थोड़ा ऊपर जाएगा। 55 and 12 55 and 12 12 के सीध में 65 and 8 65 and 8 8 के सीध में 8 हमारे पास है। इनको अब मिलाओ, so this is what is called a frequency polygon without histogram. Frequency polygon without histogram. समझ आ गया? समझ आ गया? यस सर। बात समझ आई? यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा, आप वो खुद मतलब सॉल्व करके लाना, ठीक है? ओके सर। हाँ क्वेश्चन है हमारे पास,
लिख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये लिख लिया। Yes, sir. तो लिख लीजिए क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम एंड ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम and a frequency polygon. Construct a histogram and a frequency polygon from the following distribution. From the following distribution. Following distribution. क्या है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन? Marcus and number of students. क्या क्या है मार्कस? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, अब लिखो ये 8, 18, 35, 8, 18, 35, 25, 15, 20, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको पहले हिस्टोग्राम बनाना है, फिर उसी पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप और एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं खुद ही, तो उसमें आप मिड पॉइंट बनाओ, जिस तरह ये बन गया हमारा। तो डायरेक्टली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, you can make frequency polygon without making histogram by drawing out, by converting these classes into midpoint. So midpoint को x axis पे, frequency को, number of students को y axis पे लगाओ, तो तुम्हारा polygon हो जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास एक छोटा सा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड ये हिस्टोग्राम हमारे पास। डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड हिस्टोग्राम, यस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, छोटा सा क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन histogram and frequency polygon. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम में क्या फर्क है? So there is a slight difference between, छोटी सी मतलब फर्क है इनके दरमियान। A histogram becomes a frequency polygon when we join the midpoints of tops of all the rectangles of a histogram. Thus, a frequency polygon is constructed by joining the midpoints of tops of rectangles of a histogram in a straight line by a foot rule method. So, a histogram becomes difference. What is difference? Here हम लिखते हैं difference. Becomes a polygon if we join, answer है इसका, if we join, yes, if we join the midpoints of the tops of all rectangles of a histogram. Histogram. Yes. Thus, a frequency is constructed
Thus a frequency is constructed by joining the midpoints of tops of rectangles of a histogram in a straight line. In a straight line by a foot rule to make a straight line. To make a straight line. Thus a polygon is constructed by joining the tops of midpoints by joining the midpoints of tops by joining the midpoints of all tops of rectangles of a histogram by किस rule? By a foot rule. By a foot rule. By a foot rule. Foot rule वो rule होता है जिसमें हम straight line बनाते हैं. In which we make straight line. We have two methods to construct or to join two pointers. दो pointers को join करने के लिए हमारे पास दो तरीके. Foot rule अभी मैं आपको बताऊंगा. Foot rule to make a straight line. To make a straight line. So generally the straight line which we get, that is histogram. जो straight line हम निकालते हैं ना वो polygon होता है. वो जो straight line हम निकालते हैं histogram से वही बनता है polygon. Frequency polygon. ये वो frequency polygon बनता है. ये भी मैं आपको बताता था. ये for example अगर दो points हैं, these are 2 points. इनको जोड़ना है. इनको जोड़ने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं. दो points को जोड़ने के लिए. एक तो मैं scale ले लूंगा और straight line बन जाएगी ना. Scale अगर मेरे पास होगी तो by scale I can join these points. So straight line बन जाएगी. इसको कहते हैं foot rule. इसको कहते हैं foot rule. दूसरा है free hand rule. Free hand rule में मैं straight ये नहीं रखता हूँ scale, ऐसे ही हाथ से ये straight line नहीं बन सकती है. इसमें इधर उधर हो सकता है. So we have two rules to join 2 points. One is foot rule and one is free hand rule. Free hand rule. तो वो हम frequency कर्व में इस्तेमाल करते हैं. So this is the difference between histogram is same as frequency polygon. Only difference is we join the midpoints of tops of rectangles to get a straight line. That straight line becomes the straight line we get from the histogram, that becomes the frequency polygon. Yes. तो कल मैं उठाऊंगा frequency कर्व. इसका अब रह गया, खत्म हो गया ये. फिर वो जो है ठीक है. और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है कोई? करेंगे एंड.